Hello everyone, welcome to Tiwari Academy. So today's session will be continuation of example problems of chapter 8 and 9, which is Introduction to Trigonometry and its applications. So exercise 8.3 we are going to solve today. So the question number 1 is, the question is sin theta divided by 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta divided by sin theta is equals to 2 cosec theta. हमको क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि ये जो LHS है, ये जो LHS है RHS के बराबर है, प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रूव द फॉलोइंग। ओके, सो लेट अस कंसीडर दिस टर्म, यानी कि इस टर्म को कंसीडर करते हैं। देखो विच इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, विच विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड नीचे टर्म एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ओके, नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको हम डालेंगे इसमें, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके द टर्म विल बी, द टर्म विल बी साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखेंगे प्लस sin square theta plus 1 plus cos theta whole square can be expanded 1 square plus cos square theta plus 2 into 1 into cos theta. Okay, whole term divided by 1 plus cos theta, 1 plus cos theta into sin theta. Fine. अब ये जो टर्म है, दिस टर्म विल बी sin square theta एंड cos square theta को इकट्ठे लेके आना, यानी कि sin square theta प्लस cos square theta, 1 का स्क्वायर होता है 1 and 2 into cos theta plus 2 into cos theta whole divided by 1 plus cos theta into sin theta. Okay, now sin square theta plus cos square theta का फॉर्मूला जो है अपने को पता है, we know the formula sin square theta plus cos square theta is equals to 1, so this value will be equals to 1. So 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 cos theta divided by 1 plus cos theta into sin theta. This is equals to 1 plus 1 क्या हो जाएगा, 2 plus 1 plus 1 2 हो जाएगा, 2 plus 2 cos theta divided by 1 plus cos theta into sin theta. Now we will take 2 here common. Okay, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे, यानी कि 2 into 1 plus cos theta divided by 1 plus cos theta into sin theta. ठीक है, तो ये जो है किसके बराबर होगा, this term and this term will get cancelled and it will be 2 by sin theta. ठीक है, अब देखो ये जो 2 by sin theta है, 2 by sin theta, इसको क्या हम क्या लिख सकते हैं, देखो sin theta की वैल्यू क्या होती है, sin theta is equals to 1 by cosec theta, yes or no, yes 1 by cosec theta, या फिर 1 by sin theta is equals to cosec theta, सेम चीज है दोनों भी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 by sin theta which is equals to 2 into cosec theta which is equals to RHS. Hence this is proved. Let us solve question number 2 now. Tan A divided by 1 plus sec A minus
tan a divided by 1 minus sec a is equals to 2 cosec a. The LHS, this is LHS and this is RHS, and we need to prove this LHS is equals to RHS. So let us consider this term. The term is, यानी कि जो term है वो है tan a divided by 1 plus sec a, ठीक है, minus tan a divided by 1 minus sec a, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर दोनों भी अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो इट विल बी 1 माइनस sec a tan a minus tan a into 1 plus sec a, ठीक है, and this whole term will be divided by 1 plus sec a into 1 minus sec a, ठीक है। अब हम लेंगे tan a को कॉमन, यानी कि ये वाला जो tan है कॉमन है, दोनों साइड में क्या है, कॉमन है, तो इट विल बी tan a into 1 minus sec a minus 1 minus sec a minus 1 plus sec a, ठीक है, ये होता है होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखो 1 प्लस sec a इंटू 1 माइनस sec a क्या हो सकता है, इट इज इन द फॉर्म a प्लस b, और ये क्या है a माइनस b, एंड वी नो दैट a plus b into a minus b is equals to a square minus b square. So this term 1 plus sec a into 1 minus sec a can be written as 1 square minus sec a, sec square a, यही तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो माइनस इंटू प्लस 1 इज -1, सो इट विल बी tan a इंटू, इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, मतलब इस ब्रैकेट को निकालते हैं, तो 1 माइनस sec a माइनस इंटू प्लस 1 इज -1 माइनस इंटू प्लस sec इज माइनस sec a, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस sec स्क्वायर a, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो 1 और -1 क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे, और माइनस sec a एंड माइनस sec a विल बी -2 sec a, so tan a into -2 sec a, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं हम, देखो वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a, ठीक है। तो tan स्क्वायर a विल बी इक्वल्स टू sec स्क्वायर a -1, ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं। बट यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, इसका उल्टा चाहिए, क्योंकि ये क्या है, किस फॉर्म में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी माइनस, तो दिस विल बी माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सेक जो है माइनस हो जाएगा और -1 जो है प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस सेक स्क्वायर a। तो हम इस टर्म को यहाँ पर करेंगे सब्स्टिट्यूट, ठीक है, तो इट विल बी माइनस tan square a, this will be minus tan square a, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक tan जो है अपना कट हो जाएगा, देखो इन नेक्स्ट स्टेप विल राइट दिस tan a इंटू -2 इंटू sec a डिवाइडेड बाय -1 को ऐसे ही रखते हैं, tan a इंटू tan a, क्योंकि tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan a, तो एक tan और एक tan क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो what we are left with is -2 into sec a divided by -1 into tan a,
this minus and minus sign will get cancelled, and we are left with जो बचा है वो है sec a divided by tan a, sec a into 2 because 2 also is there, तो sec a into 2 है जो बच चुका है। ठीक है, now we know that tan की वैल्यू क्या होती है, tan a can be written as sin a by cos a। क्या लिख सकते हैं tan a को हम sin a by cos a, एंड ठीक है। अब देखो यहाँ पर वो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले, तो sec a यानी कि 2 इंटू सेक ए, 2 इंटू सेक ए डिवाइडेड बाय tan a को किससे रिप्लेस कर दिया, sin a by cos a, sin a divided by cos a। If you solve this further, this will go up and this will be 2 into sec a into cos a divided by sin a। Now we know that sec a is equals to क्या होता है 1 by cos a। sec a को क्या लिख सकते हैं हम 1 by cos a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 इंटू इस 2 को ऐसे रखेंगे, sec a की जगह लिखेंगे 1 by cos a, ठीक है, इंटू cos a डिवाइडेड बाय sin a। ठीक है, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 by cos इंटू cos will be cancelled and it is remained as 2 and divided by sin theta। ओके, डिनोमिनेटर विल बी sin theta, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो sin theta हो जाएगा। और हम यहाँ पर एक और चीज को अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज sin a इज इक्वल्स टू 1 बाय cosec a। ठीक है, sin a इज इक्वल्स टू 1 बाय cosec a, ठीक है, या फिर 1 बाय sin a इज इक्वल्स टू cosec a, कोई भी चलेगा। ठीक है, इसमें से इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, एंड द टर्म विल बी नाउ 2 इंटू 1 बाय sin a विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू cosec a, इस टर्म से 2 इंटू cosec a विच इज इक्वल्स टू RHS। Hence this answer is proved। Let us now solve question number 3। If tan a is equals to 3 by 4, then sin a into cos a is equals to 12 by 25। We need to prove this, that tan a into cos a is equals to 12 by 25 if tan a is equals to 3 by 4। क्वेश्चन का मतलब ये है कि tan a की जो वैल्यू दी है दैट इज 3 by 4 और अपने को sin a into cos a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमको sin a क्या है पता करना है, उसके बाद में हम पता करेंगे cos a क्या है। कैसे करेंगे, तो लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल फॉर दैट। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ये है तुम्हारा एंगल ए। ठीक है, तो tan a यहाँ से क्या मिला है अपने को, tan a is given that is 3 by 4। अपने को तो ये पता है कि tan a की वैल्यू क्या होती है, tan a क्या होती है हमेशा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो tan a का अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल a का अपोजिट साइड जो है BC, तो दिस विल बी 3 यूनिट्स, दिस विल बी 3 यूनिट्स। ठीक है, एंड एडजेसेंट साइड विच इज इक्वल टू 4, तो एडजेसेंट एंगल A का एडजेसेंट साइड होगा AB विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ठीक है, ये है तुम्हारा एडजेसेंट साइड। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या फाइंड करेंगे, अब AC फाइंड करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम we can write AC square is equals to AB square plus BC square। तो AC square will be equals to AB square क्या है, AB क्या है तुम्हारा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस और ये होता है CB या दैट इज इक्वल्स टू 3, 3 का स्क्वायर होगा हो जाएगा 9। तो AC स्क्वायर यहाँ से मिलता है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, सो AC विल बी इक्वल्स टू 5, यानी कि जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस जो मिला है अपने को दैट इज 5, यानी कि दिस इज AC जो है तुम्हारा 5 यूनिट्स है। कितना यूनिट्स है, 5 यूनिट्स।
तो यहाँ से अगर साइन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, साइन ए यानी कि साइन ऑफ एंगल है, साइन ए क्या होता है हमेशा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, विच इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है 5, तो साइन ए की वैल्यू मिलती है 3/5। सिमिलरली cos A which is equals to adjacent side divided by hypotenuse, cos A क्या होता है adjacent side divided by hypotenuse which is equals to adjacent side is 4 and hypotenuse is 5, तो cos A की वैल्यू भी मिल गई यहाँ पर एंड हमको मिली यहाँ पर sin A की वैल्यू, ठीक है। तो नाउ लेट अस कंसिडर दिस टर्म, द टर्म इज sin A इंटू cos A, इसमें यह है तुम्हारा LHS एंड ये है तुम्हारा RHS, ठीक है, ये LHS है ये RHS है, ये तो गिवन वैल्यू है तुम्हारी, ये क्या है गिवन वैल्यू, ठीक है। तो LHS कंसीडर करते हैं, LHS इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, साइन ए की वैल्यू कितनी मिली है 3/5, तो हम यहाँ पर सिंपली सब्सटीट्यूट क्या करेंगे 3/5 इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू यहाँ से देखो, कॉस ए इज 4/5, तो यहाँ पर हम सिंपली इसको भी सब्सटीट्यूट करते हैं 4/5 which is equals to 3 into 4 is 12 and 5 into 5 is 25 which is equals to RHS, hence proved, this question is proved. Now let us solve question number 4, sin alpha plus cos alpha into tan alpha plus cot alpha is equals to sec alpha plus cosec alpha, यानी कि जो LHS है तुम्हारा sin alpha plus cos alpha into tan alpha plus cot alpha इस RHS के बराबर प्रूव करना है, दैट इज RHS क्या है sec alpha plus cosec alpha, तो दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, ओके। तो सबसे पहले LHS लिखते हैं, दैट इज LHS इज sin of alpha plus cos of alpha into tan alpha plus cot alpha, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे tan और cot को sin और cos के टर्म्स में बदल देंगे, which is we know that tan alpha can be written as sin alpha divided by cos alpha, ठीक। सिमिलरली cot alpha क्या होता है इनका उल्टा, यानी कि cos alpha divided by sin alpha, ठीक है। तो दिस वी विल सब्स्टिट्यूट हियर, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस विल बी sin alpha plus cos alpha, this will be as it is and this tan can be written as sin alpha divided by cos alpha plus cot can be written as cos alpha divided by sin alpha, ठीक है। इन द थर्ड स्टेप नाउ यहाँ पर देखो ये दोनों जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं है, तो वी विल डू LCM, वी विल टेक LCM, we will take LCM here, so this value will be sin alpha plus cos alpha, यहाँ पर LCM अगर लेंगे तो it will be sin square alpha plus cos square alpha divided by cos alpha into sin alpha, ठीक है। now we know that one formula, we know that sin square alpha plus cos square alpha is equals to 1, this is the फॉर्मूला, यानी कि इसको अगर a से रिप्लेस कर दोगे तो यही चीज होगी, ठीक है। दिस इज आवर आइडेंटिटी, तो sin अल्फा प्लस cos अल्फा को एज इट इज रखेंगे, दिस टर्म दिस टर्म दिस टर्म sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटर्न एज 1, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos अल्फा इंटू sin अल्फा। now this can be written as sin alpha plus cos alpha divided by
कॉस अल्फा प्लस सॉरी इंटू साइन अल्फा। हम इसको क्या लिखेंगे फर्दर, वी विल एक्सपैंड दिस, वी विल expand this. See, sin alpha into cos alpha into sin alpha plus cos alpha divided by cos alpha into sin alpha. What we can do here is we can cut these terms. ये equal terms को हम क्या करेंगे, cut करेंगे. So what we are left with, क्या बचेगा हमारे पास, that is 1 by cos alpha plus 1 by sin alpha. ये कट हो जाएगा तो you will get sin alpha. ठीक है, ठीक है. So 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस क्या होता है, यहाँ पर हम रफ कॉलम में लिखते हैं 1 बाय कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू सेक अल्फा. ठीक है, एंड सिमिलरली 1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कोसेक अल्फा. ये तो पता है अपने को, दिस इज बेसिक. ठीक है, तो 1 बाय कॉस अल्फा इज सेक अल्फा प्लस 1 बाय साइन अल्फा इज कोसेक अल्फा, which is your required RHS, which is your required RHS. Hence, this answer is proved. Now let us solve question number 5. So the LHS here is this one, LHS, and this is RHS. Okay. So the LHS is root 3 plus 1 into 3 minus cot 30 degree is equals to tan cube 60 degree minus 2 sin 60 degree. So we will solve both of them separately. We will solve LHS and RHS separately. And to solve this, we need to know values of, देखो इसको solve करने के लिए हमको वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए. देखो cot 30 डिग्री दिया गया है, तो cot 30 डिग्री कितना होता है, cot 30 डिग्री होता है रूट 3. ठीक है, एंड जो तुम्हारा tan 60 है, tan 60 डिग्री ये भी किसके बराबर होगा, देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, तो दिस इज ऑल्सो रूट 3. ठीक है, एंड sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री थर्ड वैल्यू इज sin 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू रूट 3 बाय 2. चलो अब इनको सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये तीन तुम्हारे वैल्यूज है. ठीक है, now we will solve this. Now we will solve LHS separately and RHS separately. तो LHS is root 3 plus 1 into 3 minus cot 30 degree is nothing but root 3. So 3 minus root 3. Okay, which is, let's see RHS what it is. Tan 60 degree, tan cube 60 degree is nothing but root 3 into whole cube, which is tan cube, minus 2 into sin 60 degree is what, root 3 by 2. ठीक है, root 3 by 2. Now let us see what RHS is. We will do here, इनको हम खोलकर अब क्या करेंगे, multiplication. We will open this brackets and multiply this. So root 3 into 3 is 3 root 3 plus root 3 into minus root 3 is minus 3 plus 3, 1 into 3 is 3, minus 1 into minus root 3 is minus root 3. Okay, now this will be around 3 root 3 minus root 3 minus 3 plus 3. So minus 3 and plus 3 will get cancelled, and 3 root 3 minus root 3 will be equals to 2 root 3. So this value is 2 root 3. So LHS is equals to 2 root 3. We got it as 2 root 3. Now let us see what is RHS. So RHS is root 3 cube means, root 3 cube क्या होता है, root 3 का cube क्या होता है, 3 root 3. देखो 3 into root 3 into root 3 into root 3 is 3 into root 3 minus 2 और 2 जो है कट हो जाएगा, minus root 3. Okay, so which is also equals to 2 root 3, which is also equals to 2 root 3. This is RHS. This is what RHS. So let this be equation 1.
and let this be equation 2. So from 1 and 2, we can conclude that LHS is equals to RHS. Hence, this question is proved. Now let us solve question number 6. So the LHS is 1 plus cot square alpha divided by 1 plus cosec alpha is equals to cosec alpha. यानी कि जो RHS है that is cosec alpha. RHS is cosec alpha. So let us consider LHS which is 1 plus cot square alpha divided by 1 plus cosec alpha. ठीक है. We know that formula 1 plus cot square alpha यानी कि a या फिर अल्फा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर अल्फा. तो यहाँ से कॉट स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1. तो वी विल नोट दिस डाउन. सो वी विल सब्स्टिट्यूट कॉट स्क्वायर अल्फा एज कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1. सो दिस टर्म विल बी, ये जो टर्म है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा. कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह डालेंगे हम कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1. सो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1. ठीक है. एंड द डिनोमिनेटर विल बी सेम एज इट इज 1 प्लस कोसेक अल्फा. ओके. नाउ इफ यू सी केयरफुली, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड वी नो दैट a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. This is your formula. Okay, so we will write this in this formula. So 1 plus 1 will be as it is, no change in this. Cosec square minus 1 square can be written as cosec alpha plus 1 into cosec alpha minus 1. ठीक है. And this whole term divided by 1 plus cosec alpha. Now अब देखो cosec alpha plus 1 and 1 plus cosec alpha are both same, so we are left with 1 plus cosec alpha minus 1. If you remove this bracket, this will be minus 1 and this will be plus 1 and both of them will get cancelled, so we are left with what? Cosec alpha, which is equals to RHS. Hence this is proved. Now let us solve question number 7. So the LHS is tan theta plus tan 90 minus theta and RHS is sec theta into sec 90 minus theta. तो हमको ये प्रूव करना है. LHS is equals to RHS प्रूव करना है. तो let us consider LHS and see. हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे. We will solve LHS and RHS separately. So LHS is tan theta plus tan 90 minus theta is what? Tan 90 minus theta. If you see this as complementary angles, it will be, इसका जो formula है that is cot theta. So tan 90 minus theta can be written as cot theta. ठीक है. So here we will write cot theta. Okay. So tan theta plus cot theta. ठीक है. Now what we are going to do is tan theta को replace करेंगे sin theta divided by cot theta से and cot theta को replace करेंगे cos theta divided by sin theta से. Okay, we will replace. So tan theta is sin theta divided by cos theta plus cot theta can be written as cos theta divided by sin theta. Now the denominator are not equal. So we will take LCM. We will take what? LCM of this. So the term will be sin square theta plus cos square theta divided by cos theta into
साइन थीटा. ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. फॉर्मूला इज देयर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है 1 के बराबर होता है. सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज, this term can be written as 1. This term can be written as 1. So 1 by cos theta into sin theta. Now this is what 1 by cos theta क्या लिख सकते हैं? We know that 1 by cos theta is equals to sec theta and 1 by sin theta is equals to cosec theta. तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम? cosec theta, so cosec theta, what we can write here is cosec theta into 1 by sin is 1 by cosec sec theta. So cosec theta into sec theta. LHS we got is cosec theta into sec theta. ये तुम्हारा क्या है? LHS है. LHS, ठीक है. This is your LHS. Now let us solve for RHS. ठीक है. RHS is sec theta. RHS is sec theta into sec 90 minus theta can be written as sec 90 minus theta क्या होता है? Sec 90 minus theta is equals to cosec theta. This is very simple. So sec theta into, instead of sec 90 minus theta, we will write cosec theta. So RHS we got cosec theta into sec theta, and LHS also cosec theta into sec theta. So we can write RHS is equals to LHS. Hence this is proved. Now let us solve question number 8. Find the angle of elevation of sun when the shadow of a pole h meters high is root 3 h meters long. क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमको क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है. किसका? सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है. यहाँ पर दे रखा है कि पोल का जो हाइट है, पोल की जो हाइट है दैट इज h मीटर्स, ठीक है, एंड शैडो की जो हाइट है वो इज रूट 3h. so this is what रूट 3h is शैडो हाइट, ठीक है, शैडो की हाइट है, और ये जो है तुम्हारे पोल की हाइट है. ये किसकी हाइट है? पोल की हाइट, ठीक है. तो let us draw a diagram for this. So let AB be pole. AB क्या है तुम्हारा? पोल है. AB is pole which is of h meters. h meters. तो AB का वैल्यू जो है that is h meters. So angle of elevation of sun will be, देखो सन कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा? सन अपनी लाइट यहाँ से छोड़ेगा. सन अपनी लाइट यहाँ से छोड़ेगा. तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर सन विल बी दिस एंगल. तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा. ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा. तो ये क्या है तुम्हारा? थीटा. सो थीटा इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. तो लेट थीटा बी एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. थीटा क्या है तुम्हारा? एंगल ऑफ एलिवेशन. और जो शैडो दिया है लेट अस कंसीडर इट एज सी बी. शैडो की हाइट कितनी है? शैडो की हाइट कितनी है? रूट 3 इंटू एच. ठीक है. ये तुम्हारे क्या है? शैडो की हाइट है. ठीक है. सो वी नीड टू फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि अपने को ये एंगल फाइंड करना है. तो एक साइड दिया है दैट इज एडजेसेंट साइड. देखो इस एंगल का ये साइड क्या है? एडजेसेंट साइड. और एक एंगल का दिया है साइड अपोजिट. तो एडजेसेंट और अपोजिट कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? तो इट इज नथिंग बट tan थीटा. सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? h बाई, यानी कि अपोजिट साइड. अपोजिट साइड क्या है तुम्हारा? पोल ऑफ द हाइट, सॉरी हाइट ऑफ द पोल, एंड द एडजेसेंट साइड विच इज रूट 3h. एडजेसेंट साइड क्या होता है? रूट 3 इंटू एच. बिकॉज tan थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है?
अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड तुम्हारा कौन सा है? ए बी है, क्योंकि थीटा के अपोजिट यही तो साइड है। एडजेसेंट साइड क्या है तुम्हारा? बी सी है। एडजेसेंट क्या है तुम्हारा? बी सी या फिर सी बी। ठीक, तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू h by root 3 into h. तो h and h will get cancelled. So tan theta will be equals to 1 by root 3. tan theta की वैल्यू क्या मिल गई? 1 by root 3. अब ये बताओ tan theta 1 by 2 root 3 के बराबर कब होता है? When, so यहाँ पर we will write the statement tan theta is equals to 1 by root 3 only when theta is equals to how much? theta की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 30 degrees. So theta is equals to 30 degree. ठीक है, so angle of elevation of sun is 30 degree. ठीक है, let us now solve question number 9. If root 3 into tan theta is equals to 1, then find the value of sin square theta minus cos square theta. ठीक है, तो सबसे पहले इस टर्म को देखते हैं, root 3 into tan theta is equals to 1. So this can be written as tan theta is equals to 1 by root 3, क्योंकि ये root 3 मल्टीप्लीकेशन में ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन में जाएगा। ठीक है, तो tan theta will be equals to 1 by root 3. And when is tan 1 by root 3? When tan theta is equals to 1 by root 3 only when theta is equals to 30 degree. तो यहाँ पर क्या मिला? theta is equals to 30 degree. So sin theta is equals to, sin theta क्या हो जाएगा? theta 30 है तो sin 30 क्या हो जाएगा? sin 30 degree, which is equals to 1 by 2. Okay, similarly cos theta is equals to cos 30 degree, which is equals to root 3 by 2. फाइन, अब हमको मिली वैल्यू sin थीटा की यानी कि sin 30 की एंड cos थीटा की वैल्यू हमको मिल गई. नाउ लेट अस टेक दिस एक्सप्रेशन. सी, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? तो इट कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो sin थीटा की वैल्यू क्या है? 1 by 2, यानी कि 1 by 2 होल स्क्वायर माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या है? रूट 3 by 2, so रूट 3 by 2 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1 by 2 का होल स्क्वायर होता है 1 by 4 माइनस रूट 3 by 2 का होल स्क्वायर होगा 3 by 4, विच इज इक्वल्स टू 1 minus 3 by 4, which is nothing but minus 2 by 4. So the answer is minus 1 by 2. So the answer is minus 1 by 2. ये तुम्हारा क्या है? आंसर है. Now let us solve question number 10. A ladder 15 meters long just reaches the top of a vertical wall. ठीक है, if the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, दिस इज द डायग्राम. ठीक है, सो लेट दिस बी वॉल. तो जो हमारा जो वॉल है, लेट ए बी योर वॉल. ये क्या है? वॉल है. यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ए बी इज व्हाट? वॉल. ठीक है, हाइट ऑफ द वॉल. ठीक है, नाउ ए सी विल बी व्हाट? ए सी जो है तुम्हारा लैडर है. लैडर, ए सी इज लैडर. तो क्या दिया है क्वेश्चन में? अ लैडर 15 meters long just reaches the top of a vertical wall. यानी कि ये जो लैडर है AC जो है तुम्हारी लैडर है. यहाँ देखो, ये जो है तुम्हारी लैडर है, ये
टॉप पे रीच होती है, जस्ट टॉप पे रीच होती है, कौन से वॉल के टॉप पे रीच होती है, ठीक है। इफ द लैडर मेक्स 60 डिग्री विद द वॉल, यानी कि देखो ये जो लैडर है 60 डिग्री विद द वॉल, ये जो वॉल है इसके साथ कितना बनाएगी, 60 डिग्री बनाएगी, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 60 डिग्री। कितना बनाती है लैडर वॉल के साथ, 60 डिग्री बना रही है, ठीक है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, यानी कि अपने को अब क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द वॉल, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। ए बी हमको फाइंड करना है। और लैडर का कितना दिया है आपको, लैडर का जो लेंथ है वो है 15 मीटर, ठीक है। सो हम क्या फाइंड करेंगे, हम जिसके अंदर हाइपोटेनस आना चाहिए, और ये जो है इसका, ये क्या है हाइपोटेनस, एंड दिस इज एडजेसेंट साइड, इस एंगल का क्या है, ये एडजेसेंट साइड है, और ये क्या है हाइपोटेनस, 15 मीटर जो है तुम्हारा क्या है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस और एडजेसेंट कौन से रेशियो में आता है, तो दैट इज नथिंग बट cos थीटा। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय, देखो आ गया एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस। तो cos 60 क्या है तुम्हारा, बताओ cos 60, एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड इज ए बी डिवाइडेड बाय, ए बी की वैल्यू तो अपने को पता नहीं तो हम लिखेंगे ए बी सीधे, हाइपोटेनस तो अपने को पता है दैट इज 15 मीटर, कितना है 15 मीटर। अपने को ये भी पता है कि cos 60 की जो वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की तो जो वैल्यू होती है विच इज इक्वल्स टू 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, सो वी विल सब्स्टिट्यूट हियर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो ए बी डिवाइडेड बाय 15 मीटर इज इक्वल्स टू 1/2, which means 2AB is equals to 15 meter. So AB will be equals to 15 by 2 meters, which is equals to 7.5 meters. So height of the ladder is, height of the ladder is 7.5 meters, ठीक है। तो this is your answer. Now let us solve question number 11. Simplify 1 plus tan square theta into 1 plus minus sin theta into 1 plus sin theta. So let us write this expression here. 1 plus tan square theta into 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. We know one formula, अपने को एक formula पता है, which is 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. So we will substitute this formula here. So 1 plus tan square theta जो है अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब 1 plus tan square theta जो है क्या हो जाएगा, it will be sec square theta. तो ये क्या हो जाएगा sec square theta into 1 minus sin theta 1 plus sin theta. अब ये देखो ये किस फॉर्म में है, ये दोनों किस फॉर्म में है, ये जो 1 minus sin theta है into 1 plus sin theta है, ये किस फॉर्म में, a minus b into a plus b. एंड वी नो दैट, हमको एक और फार्मूला पता है, दैट इज a minus b into a plus b is equals to a square minus b square. इस चीज के बारे में आपको पता है, तो वी विल राइट दिस हियर. तो sec square theta into a minus b means a square minus b square, that is 1 square minus sin square theta. a minus b हो गया. now sec square theta into 1 minus sin square theta क्या होता है, 1 minus sin square theta can be written as cos square theta, because sin square theta plus cos square theta क्या होता है, 1 होता है ना. इस आइडेंटिटी से हमने लिख लिया 1 minus sin square theta क्या हो जाएगा तुम्हारा cos square theta, ठीक है. नाउ जो तुम्हारा sec square theta होता है, sec theta को हम क्या लिख सकते हैं 1 by cos theta, ठीक है.
तो सेक थीटा को क्या लिख दिया हमने, 1 बाय कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू cos square theta. Now this cos square theta and this cos square theta will get cancelled and you will be left with 1. So इसका simplification क्या था, 1 था. So 1 is your answer. Now let us solve question number 12. If 2 sin square theta minus cos square theta is equals to 2, then find the value of theta. ठीक है, तो if 2 sin square theta minus cos square theta is equals to 2, then we need to find the value of theta. So let us consider this term first. 2 into sin square theta minus cos square theta is equals to 2. Now what we will do is, हम क्या करेंगे, इस माइनस cos square को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो इट विल बी प्लस cos square, यानी कि 2 sin square theta is equals to 2 plus cos square theta. ठीक है, अब हम इस cos square theta को चेंज कर देंगे, बिकॉज cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. ये क्यों, बिकॉज sin square theta plus cos square theta क्या होता है, इज इक्वल टू 1. ये तो आइडेंटिटी है, तो वहां से हमने ये बना दिया. ठीक है, cos square theta will be equals to 1 minus sin square theta. तो यहाँ पर इस cos square theta की जगह क्या डालेंगे, हम क्या डालेंगे, इस cos square theta की जगह हम क्या डालेंगे, ये देखो इस टर्म की जगह we will write 1 minus sin square theta, यानी कि 2 plus 1 minus sin square theta. So this will be equals to 2 sin square theta is equals to 2 plus 1 is 3 minus sin square theta. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 sin square theta. अब इस माइनस साइन थीटा को इस तरफ लेके आओ, तो इट विल बी प्लस sin square theta is equals to 3. ठीक है, 2 sin square theta plus sin square theta is 3 sin square theta is equals to 3. Now sin square theta will be equals to 3 by 3, which is equals to 1. यानी कि sin square theta is equals to 1. तो यहाँ से ये पता चलता है कि sin theta is also equals to 1. sin theta क्या है, also equals to, and sin theta is equals to 1 only when theta is equals to 90 degree. When theta is equals to 90 degree. ठीक है, so 90 degree is answer. Theta is equals to 90 degree. That is your answer. Now let us solve question number 13. Show that cos square 45 degree plus theta plus cos square 45 degree minus theta divided by tan 60 plus theta into tan 30 minus theta is equals to 1. हमको ये प्रूव करना है 1 के बराबर है. ठीक है, तो LHS क्या है तुम्हारा, दिस इज योर LHS एंड RHS ये क्या है, 1 है. RHS is equals to 1. So let us consider LHS, which is equals to cos square 45 degree plus theta plus cos square 45 degree minus theta whole term divided by tan 60 degree plus theta into tan 30 degree minus theta. यहाँ पर सबसे पहले देखो 45 डिग्री माइनस थीटा जो है, cos 45 डिग्री माइनस थीटा जो है, तो इसमें का ये 45 डिग्री माइनस थीटा हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा. देखो इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करने से क्या मिलता है, 90 माइनस माइनस इंटू प्लस इज माइनस 45, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, विच इज इक्वल्स टू
45 माइनस थीटा। ठीक है, तो दिस 45 कैन बी रिटर्न एज 90 माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा ये एज इट इज रहेगा, प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा जो है, cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा जो है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 45 प्लस थीटा, यानी कि 90 माइनस 45 प्लस थीटा। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 30 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखो, दिस इज इन द फॉर्म cos 90 माइनस a, सो cos 90 माइनस a कैन बी रिटर्न एज sin a, यानी कि अभी ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू a के बराबर है, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस a can be written as sin square 90 minus, that is 45 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद what we are going to write is same denominator, that is tan 60 डिग्री प्लस थीटा into tan 30 डिग्री माइनस थीटा। नाउ सिमिलरली यहाँ पर जैसे किया वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या किया था हमने, 45 माइनस थीटा को क्या लिख दिया था, 90 माइनस 45 प्लस थीटा लिख दिया, तो यहाँ पर हम करेंगे, देखो 30 माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा जो है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60 प्लस थीटा। देखो करके देखते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस इंटू प्लस इज माइनस थीटा विच इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस थीटा। आ गया, देखो ये आ गया, यही चीज आ गई, यहाँ पर भी ऐसे सेम किया था। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटर्न एज cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाय tan 60 plus theta 60 plus theta, and instead of tan 30 minus theta what we'll write is tan 90 minus 60 डिग्री प्लस थीटा, इतना लिख के हम छोड़ देंगे। देखो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो cos स्क्वायर 45 plus theta plus sin square 45 plus theta, so we can use one identity here, that is sin square theta plus cos square theta is equals to 1, so we will use that identity here and this term will be equals to 1, यानी कि जो ऊपर वाला टर्म है हो जाएगा 1 और जो नीचे वाला टर्म है this will be tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू, अब इस tan 90 माइनस 60 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये कौन से फॉर्म में है, 90 माइनस a के फॉर्म में है, तो tan 90 माइनस a कैन बी रिटर्न एज cot a, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot of 60 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो 1 बाय tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू cot 60 डिग्री प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, देखो cot थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाय tan थीटा के बराबर होता है, तो वी कैन राइट हियर 1 अपॉन tan 60 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो नाउ tan 60 डिग्री प्लस थीटा divided by tan 60 degree plus theta will get cancelled and we are left with 1. So this is our required answer. ठीक है, हमको यही प्रूव करना था कि 1 के बराबर है। देखो here it is given, show whether it is equals to 1 or not. So hence this is proved. Let us now solve number 14. A observer
1.5 मीटर्स टॉल, ठीक है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है, आदमी जो है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, इज 20.5 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर, यानी ये टावर की 20.5 मीटर्स की दूरी पर है, ठीक है, और टावर की जो हाइट है वो दैट इज 22 मीटर्स हाई। तो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस, हम इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। सो दिस इज द डायग्राम फॉर्म्ड बाय दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पता चलता है अपने को, 22 मीटर जो है किसकी हाइट है, ये टावर की हाइट है, 1.5 मीटर्स कौन है, तुम्हारा आदमी, एंड 20.5 मीटर्स जो है ये क्या है, आदमी और टावर के बीच में की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड दिस टावर। 25.5 is distance between this man and this tower, ठीक है, तो this will be 20.5 meter. This height of tower is nothing but 22 meters. ये पूरा ABG कितने के बराबर है, 22 के बराबर है, ठीक है, ये भी कितने के बराबर है, 22 के बराबर, ठीक है। हाइट ऑफ द मैन इज, हाइट ऑफ द मैन यानी कि ये जो हाइट है कितना है, 1.5 मीटर्स, विच मीन्स द ओरिजेंटल लेवल, यानी कि जो ओरिजेंटल लेवल होगा जहां से ये देखेगा, ऑब्वियसली आंखों से ही देखेगा, तो इसके आंख जो है 1.5 मीटर्स अवे है, यानी कि 1.5 मीटर्स यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो ये यहाँ से देखेगा, यहाँ से क्या करेगा, इस टावर के टॉप को देखेगा, टावर के टॉप को देखेगा, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस ये पैरेलल हो जाएगा इसके, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस विल बी पैरेलल टू CB, तो ये कितना हो जाएगा, 20.5 मीटर, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे बी डैश, ए इंटू बी डैश, क्योंकि ये अपना न्यू डिस्टेंस है, तो ए इंटू बी डैश विल बी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी इंटू बी डैश, यानी बी इंटू बी डैश, और बी इंटू बी डैश इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, कितना है 1.5, तो ए बी डैश विल बी इक्वल्स टू, ए बी कितना है 22 माइनस 1.5 विच इज इक्वल्स टू 20.5 मीटर्स, ठीक है। तो ए इंटू बी डैश कितना मिला, यानी कि ये वाला लेंथ कितना मिला अपने को, ये वाला लेंथ कितना मिला है 20.5, अब ये वाला भी 20.5 है और नीचे वाला भी क्या है 20.5 है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, यानी कि हमको थीटा फाइंड करना है, तो लेट थीटा बी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम आई, ठीक है, आई ऑफ मैन, ठीक है, ओके। तो देखो, तो अपने पास दो साइड दिए हुए हैं, दैट इज अपोजिट, यानी कि थीटा का जो है अपोजिट साइड होगा, ये वाला साइड कौन सा है, अपोजिट साइड है, और थीटा का जो ये वाला साइड है दिस इज एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो अपोजिट और एडजेसेंट साइड कौन से रेशियो में आता है, तो इट इज नथिंग बट tan, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, अपोजिट क्या है 20.5 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट इज नथिंग बट 20.5 मीटर्स, दोनों क्या है मीटर्स में, विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट, तो tan थीटा की वैल्यू क्या मिली है, इक्वल्स टू 1, एंड tan थीटा इज ओनली इक्वल्स टू 1 when theta is equals to 45 degrees, theta is equals to 45 degrees, ठीक है, so theta is equals to 45 degrees, so this is your answer. Now coming on to question number 15, show that tan raised to the power 4 theta plus tan square theta is equals to sec raised to the power 4 theta minus sec square theta. So this is LHS and this will be our RHS, and we need to prove that LHS is equals to RHS, यानी कि ये जो LHS है RHS के बराबर प्रूफ करना है। ये जो टर्म है tan raised to power 4 theta plus tan square theta sec raised to power 4 theta minus sec square theta के बराबर हमको प्रूफ करना है। सो LHS लेते हैं,
let us consider LHS, which is equals to tan raised to the power 4 theta plus tan square theta. तो यहाँ पर tan raised to the power 4 theta को क्या लिख सकते हैं हम, tan square theta into tan square theta प्लस tan square theta है, वैसे हम लिखेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, tan square theta, तो tan square theta क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, tan square theta प्लस 1, ठीक है, tan square theta प्लस 1 बचेगा, ठीक है। नाउ tan square theta प्लस 1 क्या होता है, tan square theta प्लस 1 होता है तुम्हारा sec square theta. This is identity. This is what, identity. So this can be written as tan square theta into tan square theta 1 plus 1 क्या होता है, sec square theta, ठीक है, फाइन। The next step is tan square theta क्या होता है, tan square theta क्या होता है, देखो जब tan square theta plus 1 sec square theta होता है तो tan square theta क्या हो जाएगा, sec square theta minus 1, ठीक है, sec square theta minus 1, हम इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस विल बी अराउंड sec square theta minus 1 into sec square theta। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट sec raised to the power 4 theta minus sec square theta, which is equals to RHS. So this question is hence proved. This is proved. Thank you so much students for attending this session till the end. I hope this question will help you in the future. Have a nice day. Take care.